Okay, the last item of the evening is going to be the drama. And how many of you in this hall are new to IEF annual day function this year? Okay, yeah, come on over because, good Vikram. The general rule of the drama, everyone move as close as possible. Maximize the chairs here if you want to understand and hear the drama. If you don't want to hear the drama, you can sit as far as you want because it doesn't really matter. Second thing, I want the parents of the children to make sure that children are not making noise. You can sit down here, watch the play, but don't run around, don't make noise, okay? Because we will be speaking dialogues and everyone needs to understand what we are speaking. Is that good? Make sense? You can sit here, but no making noise, no running around. And because it's a play and every dialogue, every line is important, we need everyone to be quiet and pay attention and listen to it. If you're not into the play, you can decide. And then, let me introduce the play to everybody. So we are doing a play called Shaadi Ki Baat. For IEF annual day program, every year we do a comedy. We believe in comedy, we want to make everyone laugh. This year we have chosen the comedy which is based on a subject. And basically the subject is that women empowerment, that women have equal right to select their groom as much as the boys have the rights to select their girl. So basically defying the rules away. So the drama is called Shaadi Ki Baat. It's a comedy. We prepared this play in 2 weeks. So give it up for IEF Natak Mandali. So can everyone start moving a little bit forward? Take your chairs, move forward. Because we don't really have a big theatrical setup with microphones and everything. So we'll be trying to speak up as much as possible. We want the crowd to be intimate like you're doing it in our basement. Everyone here is a big family, big friends. Big friends. Give a round of applause for yourself. Actually. Yeah, great. I love this crowd. And all the photographers make sure you get pictures of all of us. Not just the people, your family member, and just focus on that. Everyone who's on the play, you need to focus on them. And the only reason I'm saying that is because Lina is not here. Okay, everyone ready? Our actors are ready? Here we go, Shaadi Ki Baat. आदत नहीं है। आज रूसी नहीं आई है। वो बात सही कही। अरे ठहरो, इतनी बेल बजाओगे, आ रही हूँ ना। तैयार तो होने तो मुझे भी। ओए ओए। आई
मैं क्या हर्ज है? मैं कैसे बैठ सकती हूँ? चांद, जी पिताजी। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? फिर सब भूल गए क्या? नहीं तो पिताजी, मुझे सब याद है। तो फिर ये क्या बेवकूफी की बातें करने लगे? बेवकूफी की बातें नहीं पिताजी, मैं तो ये रिहर्सल कर रहा हूँ, ड्रेस रिहर्सल, ग्रैंड रिहर्सल। अगर मैं अपने डायलॉग भूल जाऊँ ना तो आप मुझे याद दिला देना, ठीक है? आपका नाम क्या है? मुझे चमेली कहते हैं। चमेली। नाम सुनते ही मस्तिष्क और मन दोनों विभोर हो जाते हैं। पिताजी, आपने तो कहा था इसके बाद ये मेरा नाम पूछेंगी, इन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं। तुम रहे नीरे बुद्धू के बुद्धू ही। बुद्धू के बुद्धू ही हूँ तो आप ही का लायक बेटा। अगर लायक होते तो इस वक्त झट से अपना नाम खुद बता दे। हाँ चमेली जी, मेरा नाम चांद है। मुझे मालूम है। हाँ? जी मालूम है? हाँ। पिताजी, इन्हें मेरा नाम मालूम है तो मेरा काम भी मालूम होगा। चमेली, जरा मेम साहब को खबर तो कर दो। अभी बुलाई जी, अभी बुलाई। मालकिन, ओ मालकिन, सुनिए, लड़के वाले आ रहे लगते हैं। पिताजी, ये आपने क्या किया? रिहर्सल अधूरी की अधूरी रह गई। मैंने तुम्हें जो बातें समझाई है जरा एक बार दोहरा लो, जरा एक बार जल्दी से दोहरा लो। हाँ हाँ हाँ, ये देखो कपड़े भी क्या पहना के लेके आए हो मेरे को। दर्जी ने पूरी बाजू भी नहीं सिली ठीक से। सफेद पजामा, नीला कुर्ता, ये पता नहीं क्या क्या रंग बिरंगा डला दिया। जरा दोहरा लो एक। हाँ, आपने लिखाया था आपका नाम क्या है, आप कहाँ तक पढ़ी हैं, आपको गाना आता है, आपको खाना आता है। खाना आता है? अरे मैंने लिखवाया था आपको खाना बनाना आता है। वो गलती हो गई पिताजी। आपको खाना बनाना आता है, आपको बोलना आता है। बोलना आता है? अरे मैंने लिखवाया था आपको अंग्रेजी बोलना आता है। हाँ। आपको रोना आता है। रोना आता है? अरे ये प्रश्न मैंने कब लिखवाया था? पिताजी, ये मैंने अपनी तरफ से ही जोड़ दिया। अब गाना आता है तो रोना तो आता ही होगा ना। पिताजी, अगर उसने किसी भी प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया तो? ओ, कैसे गधे से पाला पड़ा है। पिताजी, गधा तो सिर्फ एक ही तरह का होता है। लगता है तो लुटिया जरूर डुबो देगा। पिताजी, उसकी चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने तैरना सीख लिया है। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ। अभी आप कैसी हैं? अच्छी हैं? पिताजी, अच्छी नहीं है तो बहुत अच्छी है। आप लोग बैठिए, मैं जरा चकोरी को लेके आती हूँ। चकोरी? पिताजी, आपने सुना? उसका नाम चकोरी है। तो क्या हुआ? आप तो साहित्य से एकदम वाकिफ नहीं मालूम होते। मैं चांद, वो चकोरी, कितनी अच्छी रहेगी हमारी जोड़ी। अरे चुप कर बदतमीज, ऐसी मरम्मत करूंगा कि सारी कविता करना भूल जाएगा। पिताजी, घर चल के जितनी मरम्मत करनी है कर लीजिएगा, मगर यहाँ तो मुझे कविता करने दीजिए। आपको पता नहीं है, आजकल की लड़कियों को कवि खास तौर पे पसंद आते हैं। कभी कभी मेरे दिल। अरे चुप कर कवि के बच्चे। अच्छा, अब आप भी कवि बन गए? वाह वाह वाह। पिताजी, आप किसी और दिन कवि बनिएगा, आज मेरी शादी की बात हो रही है। हाँ। अरे चुप कर। अरे क्या बात है? जरा यूं ही, जरा यूं ही। जरा यूं
यूं ही। हाँ जरा यूं ही। नहीं, पहले लेडीज फर्स्ट। ये मेरी बेटी चकोरी है। चकोरी? मेरा नाम चांद है। ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम प्रभात चंद्र है। ये मैट्रिक फेल है। मैं बीए पास हूँ। मैं ही आपको देखने आया हूँ। ये तो बस बाय द वे यूं ही चले आए। How are you? I'm good. Ladies first. मुझे लगता है बच्चों को चलो हम बाहर बगीचे में घुमाएं। अपनी बना रहे। मैंने तुम्हें जो समझाया था ठीक से ध्यान है? हाँ 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 पिताजी। आपको देख के तो मैं सब कुछ भूल ही गया। क्या भूल गई? वही जो पिताजी ने लिखाया था। लिखाया था? याद आए तो बताओ। एक गिलास पानी मंगा दीजिए ना। अरे चाय लीजिए, देखिए। चमेली जरा चाय तो लाना। खाली चला। थैंक यू। अरे 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 ये आप क्या कर रही हैं? चाय बना रही हूँ। ये तो आपने सब उल्टा कर दिया। क्यों? पहले चीनी, उसके बाद दूध, उसके बाद पानी डाला जाता है। आपने तो इसका सब कुछ उल्टा ही कर दिया। लेकिन चाय तो ऐसे ही बनती है जैसे मैंने बनाई है। ये चाय बनानी आपने कहाँ से सीखी? वो होम साइंस की क्लास में ना हमारी टीचर ने ऐसी ही चाय बनाई है। सिखाई होगी। लेकिन अब मैं जैसा कहूँ वैसी ही चाय बनानी होगी। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है कि पत्नी को पति की आज्ञा का पालन करना होता है। हाँ। और मैं ना मानूं तो? ना मानो तो मैं रूठ जाऊंगा। उसके बाद तुम मुझे मनाना। इस रूठने मनाने में कितना आनंद आएगा। और मैं ना मनाऊं तो? हाँ? ना मनाओ तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को खुद ही मना लूंगा। आप तो बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं। सच? अब पिताजी तो कहते हैं कि मैं कुछ बात ही नहीं करता। नहीं, बातें बनानी खूब आती हैं आप। अब जरा कुछ काम की बातें हो जाए। हाँ, आप खड़े हो जाइए। क्यों? कहाँ ना खड़े हो जाइए और जरा चल के दिखाइए। अरे मैं क्या कोई घोड़ी हूँ जो आप मेरी चाल देखना चाहते हैं? देखिए अभी काम की बातें हो रही है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। जरा चल के दिखाइए, मुझे देखना है आप लंगड़ाती तो नहीं है ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ खड़े हो जाइए, मुझे आपकी हाइट नापनी है। और ये ऊंची एड़ी वाली सैंडल उतार दीजिए। सीधी खड़े रहिए। हाँ 5 फुट 1 फीट। हाँ ठीक है। क्या ठीक है? हाँ आपकी हाइट जो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, एकदम ठीक है। हाँ एक वेट मशीन मंगा दीजिएगा। आपका वेट देखना है। चमेली जरा स्केल तो लेके आना। हाँ सब रेडी रखते हैं। थैंक यू। तो घर की खड़े हो जाइए। हाँ 110 पाउंड। ठीक है। डिस्काउंट। अब ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी कमर का नाप ले रहा हूँ। आपने तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी।
कोई पराई स्त्री के कमर में हाथ डाल दे क्या? अमेरिका में तो इसे बुरा नहीं माना जाता। मैं अमेरिकन नहीं, इंडियन हूँ। अच्छा ठीक है, ये लीजिए फीता और अपनी कमर का नाप ले लीजिए, और अगर 17 इंच से 1 इंच भी ज्यादा हुआ तो ये शादी की बात कैंसिल हो जाएगी। हाँ पौने 17 इंच। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पौने 17 इंच। पिताजी ने बताया। हाँ हाँ हाँ, जरा आंखें दिखाइए। डरा क्यों नहीं है अपने को? मैंने तो बोला आंखें दिखाओ। अच्छा अब दांत दिखाइए। हाँ 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 हाँ, क्या मोती की लड़ियां हैं, एकदम कॉलगेट स्माइल। 1 2 3। ये क्या कर रहे हैं आप? आपके दांत गिन रहा हूँ, पूरे 32 तो है ना। अजीब आदमी है ये। शुक्रिया शुक्रिया, इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये दांत दूध के दांत हैं? जी नहीं, चाय के हैं। चाय के दांत? हाँ, क्योंकि मैं दूध नहीं चाय पीती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या अभी आप पढ़ती हैं क्या? जी नहीं, मैं MA पास कर चुकी हूँ। आपने बायोडेटा में पढ़ा नहीं लगता? ओ MA, ये तो मेरे से भी आगे पढ़ गई। कोई बात नहीं। अच्छा आपको खाना बनाना आता है? जी हाँ, मुझे चटनी बनाना खूब अच्छी लगती है। एक बार एक लड़के ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बातें की थी ना, मैंने उसकी वो चटनी बनाई थी कि उसका स्वाद वो जिंदगी भर याद रखेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। आपको कुछ अच्छा ये बताइए, मेरे कुर्ते का बटन अगर टूट जाए तो आप क्या कीजिएगा? मैं दूसरा लगा दूंगी, और ऐसा लगाऊंगी ना तो कि जिंदगी भर ये निकलेगा ही नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। आपको कुछ संगीत का शौक है? हाँ, मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद है। आपने रेडियो सिंगिंग में RJ राजीव को सुना है? सुना RJ राजीव। अच्छा ये बताइए, कुछ गा बजा भी लेती हैं आप? हाँ, मैं पेंडोरा, सावन, सीडी प्लेयर सब कुछ बजा लेती हूँ। मेरे कहने का तो यहाँ साइड में हाँ, तो कौन सा ताल बजाऊं? 3 ताल। 3 ताल। हाँ 3 ताल तो बहुत आसान है ना? हाँ तो बजा दो। हाँ। टक्का टिक्का टक्का टिक्का टक्का टिक्का टक्का टिक्का। ये क्या बजा रहे हैं आप? तबला। ओहो, मैंने कहा कौन सा ताल बजा रहे हैं? 3 ताल। ओहो, ना सम है, ना लय है, ना ताल है, पता नहीं कैसा उटपटांग ताल बजा रहे हैं। मैं ठीक नहीं बजा रहा हूँ। हाँ। मैं ठीक नहीं बजा रहा हूँ, आप भी ठीक से नहीं नाच रही हैं। मैं ठीक से नहीं नाच रही हूँ। वो मैंने अच्छे तबलियों के छक्के छुड़ा दिए हैं, और आप बोल रहे हैं मैं ठीक से नहीं नाच रही हूँ। हो गया आपका? हाँ हो गया हो गया? हो गया। बैठिए। हाँ यहाँ पे बैठिए। पिताजी बैठिए। पिताजी। कोई बच्चे हैं आप जो पिताजी को बुला रहे हैं? बैठिए यहाँ पे। बाबूजी। चुप हाँ? बैठिए। हाँ। अभी मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। मुझसे? हाँ। मुझसे सवाल? जी हाँ। हाँ, पूछिए। क्या करते हैं आप? वो तो बड़ा ही आसान सवाल है। कविता। कविता तो बेकार लोग क्या करते हैं। आप कोई काम भी करते हैं? हमें काम करने की क्या जरूरत है, हम तो खानदानी रईस हैं। खानदानी रईस? हाँ। तो आपके पास काफी सारी जायदाद होगी। हाँ, जिस किराए के मकान में रहते हैं ना, वो किराएदार भी अपने ही हैं। जिस सरकारी बस में सफर करते हैं, वो सरकार भी अपनी है। और जिन दोस्तों के साथ कॉफी पीते हैं, वो दोस्त भी अपने ही हैं। तो रोटी किसके साथ खाते हैं? बाबूजी के सर, क्योंकि वो भी अपने ही हैं। और शादी किसके बूते पर करने आए हैं आप? आपकी माँ के बूते पर, क्योंकि वो भी अपनी ही। नहीं, आपकी माँ ने हमें 30,000 रुपए दहेज में देने का वादा किया है। अच्छा, हाँ। ये बात है। हाँ। मुझे नहीं मालूम था। अब तो मैं भी कसम खाती हूँ कि ये शादी हरगिज़ नहीं होगी। क्या? ये आपने कैसी कसम खा ली? देखिए, मैं आपका वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा। 10 मिनट में मुझे आपका प्रेम हो गया है। 10 मिनट में? 10 मिनट में तो एकता कपूर की सीरियल में भी प्यार नहीं होता। चांद, क्या हो रहा है? पिताजी
पिताजी देखिए ना, इन्होंने शादी से इनकार कर दिया है। तो तूने ही कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी होगी। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ, वो कैसे पिताजी? अब तुम दोनों साथ में ही रहोगे। साथ साथ रहिए। जब हम बगीचे में घूम रहे थे, हाँ, तो मेरी नजर इस नोटबुक पे गई। हाँ, रजनी देवी ने पूछा, तो इसमें क्या लिखा है? हाँ, वही प्रश्न जो मैंने तुझसे लिखवाए थे। हाँ, इनसे। अच्छा। उन्होंने इसका बहुत ही संतोषजनक जवाब दिया। और हमारी शादी तय हो गई है। पिताजी, पिताजी, अब तुम और ये भाई बहन जैसे। चकोरी बहन, मेरे हाथ में राखी बांध दो। जी चांद भैया। पिताजी क्या किया आपने? चमेली, तेरी शादी होगी। चमेली, मनीषा, वेरी गुड। राजीव चकोरी, पृथ्वी। अभी नाटक के बाद माइक लिया तो क्या फायदा? हमारी चमेली, मनीषा बुटाला, हमारी चकोरी, पूर्वी ठाकर, हमारे बाबूजी ने जो सब गड़बड़ कर दी, और निकी दलाल, रजनी देवी। और मैं राजीव, जिसकी शादी नहीं हुई। Director of the play and play selection, Rajiv. And thank you all guys. You guys are the wonderful, wonderful, wonderful audience. And you always encourage us. Thank you. Thank you so much.